स्पेशल शो स्ट्रीट डायरीज और आज रमजान के ओकेशन पर हम आए हैं बोरी मोहल्ला में और यहाँ पर मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है जो ये सब खाना काफ़ी पसंद करते। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट मी इंट्रोड्यूस इकबाल खान ऑन माय शो स्ट्रीट डायरीज। Thank you for having me. 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 How excited are you to enjoy the food over here? I am always excited to come to this place. I'm a very frequent actually to Mohammad Ali Road, but Ramzan is a great time to come here. But at least once or twice, not every day, but once or twice definitely one should come here and gorge on some good food. And I think it's actually this place, this area is also I must say it's beyond religion. A lot of people from all the religions come here in Ramzan and enjoy food. You know, as we talk about food, इकबाल, मैं आज आपको एक इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ one of your dishes which is special I feel, और हमने एक लोकेशन को लिटरली आपके लिए रिसर्च किया है, तो लेट्स गो ओवर देयर एंड आई एम होपिंग कि आपको वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा लगेगा. It better be. Yeah, And also people will know that what is that favorite dish of mine. Let's not discuss this right now. Yeah, let's not discuss it. Yeah. Let them let's show them straight away. Yeah. We can open it from there and then Zoom into it, right? Come, let's go and explore this place. Chalo. इकबाल को नली निहारी काफ़ी पसंद है और इसके चलते आप गॉट हिम टू द हाउस ऑफ निहारी, राइट? Yes, Nali Nihari is my favorite and my favorite is the one which you get in Lucknow at Chowk. There's a place called Mubin, but I have been told by you that this is one of the best places. And I'm sure like they are not going to disappoint you. Our special menu आपके लिए बनाया है. Absolutely. ठीक है? Can't wait. Come. रमज़ान के टाइम पे स्पेशली इकबाल, लाइक आप कैसे सेलिब्रेट करते हो, लाइक हाउ यू सेलिब्रेट द एंटायर ओकेजन? We actually keep it very simple in Ramadan. So Sehri and Iftari both are very simple. We make sure that we don't go crazy, but we make sure that couple of days are nice. We go a little overboard, but there's only couple of days. So one day इन दी एंटायर रमज़ान, एक दिन तो डेफिनेटली मोहम्मद अली रोड पे होता है, वो तो मतलब समझो डेजिग्नेटेड है. और दूसरा घर पे जितना भी थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा बनता है, बट मोस्टली वी कीप इट सिंपल. अच्छा, और अब तक का कितने रोज़े आपने रखे हैं? रोज़े सारे रखने होते हैं. So how do you manage, you know, when you're working and when you're fasting, how do you manage your entire, you know, shoots or entire schedule of yours? तो मैं पत्थर तो तोड़ता नहीं हूँ, मैं तो शूटिंग ही करता हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा कुछ फटीग आ जाए, कुछ आ जाए, क्या आ जाए, कुछ आ जाए. वैसा मतलब रोज़े आदमी रख ही सकता है नॉर्मल काम में. जो मेरे ख्याल से रोज़े आराम से रख सकता है. रोज़े आप अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो अलग बात है, तब आपको अलाउड है कि आप नहीं रख सकें. लेकिन हमारा जैसा काम है तो उसमें ईजीली रख सकते हैं. हाँ, कभी कभी किसी ऐसी जगह पे शूट होता है जहाँ पे बहुत गर्मी हो, जैसे राजस्थान में डेजर्ट में शूट है, बहुत धूप है, कुछ है, भागम भागी बहुत है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से दोज डेज आप अगर आप नहीं रख सकते तो नहीं रख सकते. उसमें भी है फिर कि आप बाद में रख सकते हैं. आई थिंक गॉड हैज़ केप्ट इट वेरी ईजी. पीपल हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड. और इसी बात पर मैं आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाहती हूँ, बिकॉज आई फील we should be ordering the food, especially the nali nihari which we are craving to eat. Can't wait. So it has nali nihari and bheja. yeah. What is special roti made of? Maida. Maida. You don't have normal roti. You know Iqbal, you know that कि जब भी पहला रोज़ा रखते हैं, you get this special हार चढ़ाओ kind of a thing. There is this ritual which happens whenever you fast for the first time in your life as a kid. अच्छा. Yes, आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ है तो you really need to question your parents now on that. मेरे साथ सच्ची में ऐसा कुछ नहीं हुआ. सच्ची में? हाँ. Okay. सारे ज़मीन पर मोमेंट is happening with you right now. मुझे याद है, अलबत्ता जब हम बहुत छोटे होते थे तो हमको बोलते थे कि ब्रेकफास्ट एक बार खा लो, फिर लंच तक रोज़ा रखना.
फिर लंच से शाम के 4 बजे तक रोज़ा रखना, फिर 4 बजे से लेकर डिनर तक रोज़ा रखना। जब हम बहुत छोटे थे तो हमको लगता था कि हम वो रोज़ा रख रहे हैं। बट सो एक रिचुअल होता है दैट व्हेन किड्स आर फास्टिंग, यू नो व्हेनेवर दे आर कीपिंग द फर्स्ट फास्ट और इफ दे आर कंप्लीटिंग देयर 30 डेज ऑफ फास्ट, उनको स्पेशल प्राइज मिलते हैं, जैसे कि यू नो उनको हार पहनाया जाता है, उनको सब जगह से एनवलप आते हैं पैसों के। अच्छा, यस, मैंने तो सुना भी नहीं कभी ये। बस हमको तो रखना है हमको, मैंने तो सुना भी नहीं कभी। ईदी का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया, यू नो बिकॉज यू आर फास्टिंग? तो ईद के, वो तो ईद के टाइम ना। हाँ, तो वो भी तो मिलती है ना बेसिकली। हाँ, मतलब यू सेइंग कि रमज़ान, ओह नो। कभी ईदी के लिए आपने कभी झगड़ा किया है, कभी रोया है, लाइक अरे यार मुझे ईदी इतनी कम मिली या मुझे ईदी नहीं मिली? हमेशा 100%। बच्चा तो रोता है ईदी के टाइम पे, ये तो नॉर्मल है। एंड नाउ एज वी ग्रो अप, यू नो वो ईदी का फॉर्मेट अपने आप से चेंज हो जाता है या तो गायब हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है? वो तो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई पेरेंट्स तो तब बच्चों को एंड तक देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फिर आपको वापस माँ बाप बच्चे बन जाते तो माँ बाप को ईदी देनी चाहिए। तो नॉट ईदी बट जस्ट जनरली जस्ट जैसे लिटिल जेस्चर कि मैं अब मम्मी को दे रहा हूँ या डैडी को दे रहा हूँ, वो ईदी टाइप। वो ले न ले वो उन पे छोड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। और आपने कभी किसी को ईदी दी है? हाँ, मैंने तो दी है। हाँ, मैं अपने बच्चों को देता हूँ। और मेरी डिमांड? छोटी वाली तो मेरी बहुत छोटी है, अभी 3 साल की, उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है अभी ईदी का। अभी मेरे ख्याल से इस साल उसको शायद समझ आ जाएगा ईदी। लेकिन हमारा जो बड़ी वाली है वो, उसको वो डेफिनेटली वेट करती है ईदी का, डेफिनेटली। उसको एक्सपेक्ट करती है कि हाँ ईदी तो होनी चाहिए, बिल्कुल। कभी ऐसे हुआ है कि दैट बाय मिस्टेक आपने रोज़ा तोड़ दिया हो? बाय मिस्टेक शायद बचपन में हुआ होगा, और बट अदरवाइज मुझे याद है, मुझे काफ़ी बार पिछले 10 साल में अगर मैं देखूं तो 5-6 बार ऐसा हुआ है कि मसल क्रैम्प हो गया है, और मसल क्रैम्प की वजह से हिल नहीं पा रहा आदमी, तो वो डिहाइड्रेशन से यूजुअली होता है, वो पहले 2-3 दिन होता है, तो उसकी वजह से शायद तोड़ना पड़ा। कभी आपने ऐसी एक्टिंग की है कि यू नो बेसिकली यू आर फास्टिंग बट यू आर एक्चुअली नॉट एंड यू जस्ट गो एंड लाइक ईट छुपके से? नहीं, कभी नहीं। अलबत्ता हम जब बहुत छोटे थे, 7-8 साल के, तब मुझे याद है कि हमको मेरे जो चचा हैं वो, और वो हमको बोलते थे चुपके से ऑमलेट जाके खा लो, हम बताना मत किसी। एंड आई हैव टू आस्क यू दिस के कश्मीर से आपका रहना करना रहा है, यू नो कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई। कश्मीर में किस तरह से आप लोग यानी रमज़ान बनाते थे, यानी क्या होता था खाने का, यानी क्या बेसिकली रिचुअल रहता है? तो हमारे घर में जो मुझे बचपन का याद है वो यही है कि तब भी मतलब एलैबोरेट कुछ नहीं होता था, वो बहुत सिंपल ही होता था। हाँ, मुझे इतना याद है कि फिरनी रोज़ बनती थी, रोज़, और फ्रूट होता था, और एक कश्मीरी एक ड्रिंक है, उसको बबरी ब्योल कहते हैं, उसमें चिया सीड्स होते हैं और वो दूध की बनती है और उसमें चीनी होती है। तो आज मैंने फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में देखा उसमें वो रूह अफ़ज़ा भी डालते हैं, लेकिन कश्मीर में रूह अफ़ज़ा नहीं डालता है। तो ये इतना तो डेफिनेटली होता था। और क्या होता था, और उसके बाद फट से मेरे ख्याल से मगरिब के बाद फट से डिनर हो जाता था। बट कश्मीर की बात करें तो यू नो व्हेनेवर वी गो टू कश्मीर वी हैव दिस यू नो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, और एंड आई एम श्योर लाइक यू नो ऐसे भी रहा होगा ओकेशन जहाँ विंटर्स में कश्मीर के इसमें आपने रमज़ान किया होगा, यू नो इट्स लाइक स्नो कवर्ड एंड ऑल दैट, यू नो हाउ इट हैज़ बीन फॉर यू? आई एम श्योर इट्स वेरी पीसफुल ओवर देयर। द फूड, द क्वालिटी ऑफ फूड क्या चेंज होता है? एक्चुअली क्या है, कश्मीर का जो मौसम है स्पेशली विंटर्स, वो ऐसा है कि, और उसकी वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ पे आप बहुत सारा नॉनवेज जो है और कार्बोहाइड्रेट्स इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली विंटर्स में। वहाँ की स्पेशल डिशेस, फॉर एग्जांपल जो वाजवान होता है वो ऑर्डिनरी घरों में नहीं बनता है,
वो स्पेशल ओकेजन्स पे बनता है। लेकिन वहाँ की जो जिसको चोट कहते हैं, जो सुबह गिर्द कहते हैं जिसको, या लवासा कहते हैं, दैट्स प्योरली मेड ऑफ मैदा, और वो बड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है विंटर्स में। और एक हरसा करके एक डिश होती है जो मटन को मैश करके बनाया जाता है, उसमें प्योर घी डलता है। वो मेरे ख्याल से बॉम्बे में अगर रोज़ आदमी खाएगा तो 2-3 बाईपास सर्जरी तो हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है विंटर में। काफ़ी यानी हैवी भी होता है ना खाना वहाँ बहुत का। है, बहुत है। मतलब वो स्पेशली, और वो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है यूजुअली। And coming to Mumbai, when you're having the food over here, are you liking it? Like, what's been the thing? Like, what changes have you seen as such? मैं एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे तो 24 साल हो गए अभी बॉम्बे में। बॉम्बे आके मुझे जो ये एक्चुअल सो कॉल्ड मुस्लिम क्विजीन जो है ना, उसका मुझे असली पता बॉम्बे में जाकर चला। लाइक हलीम, नल्ली, निहारी, कीमा पाव, है ना, ये सब। तो ये सब, और मैंने हालांकि मैंने दिल्ली में कॉलेज किया है। दिल्ली इज़ ऑल्सो नॉट एट दैट टाइम व्हेन आई वाज देयर, इट वाज नॉट वेरी हाई ऑन बिरयानी। फिर यहाँ पे बिरयानी इज़ लाइक, यू नो, बिरयानी इज़ लाइक कंफर्ट फूड हियर। इन सर्टेन एरियाज इट्स लाइक मैगी, यू नो। तो बिरयानी इज समथिंग एल्स ओनली। तो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिरयानी, एंड आई एम गॉट सो यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ अ बिरयानी नाउ, द बॉम्बे बिरयानी जिसको कहते हैं, कि मुझे बाकी सारी बिरयानी भी फीकी लगती है। हाँ, मुझे लगा कि शायद से आपको हैदराबादी बिरयानी ज़्यादा पसंद होगी। है, अच्छी है वो। But still, like, लेकिन वो वैसा हो जाता है, यू नो, जो एक जब कोई देसी इटालियन रेस्टोरेंट में जाता है फिर कहता है मेक इट स्पाइसी, वैसा वैसा वाला। coming to Mumbai, as we talk about it also, you know, and what we have spoken, when you're shooting, and I'm sure, you know, and I've seen that, you know, when I've been on TV के sets पे भी, आप लोग बहुत अच्छे से इफ्तारी को पूरा सजाते हो वहाँ पे। वहाँ पर, you know, on the set, आप कैसे इफ्तारी खोलते थे, या कभी खोला है, या कुछ मेमोरी आपकी रही हो? तो मैं आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट रमज़ान दैट आई एम नॉट शूटिंग, अदरवाइज रमज़ान में मैं हमेशा शूट कर रहा होता हूँ। एंड वी मेक इट अ पॉइंट दैट देयर इज़ अ नाइस स्प्रेड, और everybody is invited. The entire set is invited for iftari, and बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। We make sure that it's a nice, good spread. Yeah. And other people also look forward कि एक तो नाश्ता जो होता है वो ठीक है, लेकिन इफ्तारी का तो खाना ही खाना है। Anyone in your mind where you really want to like kind of have your iftari with any of the celebs you know of, you know? Actually, I'll tell you something. Basically, I don't go out too much for iftar. Maybe one or two, because some of them are my close friends. But otherwise, you finish iftari and then you have to immediately do maghrib. So then, if that gets delayed, then it's just a little, because maghrib has a special time and you have to finish it. So that is something that I avoid. And if I go to a friend's place, mostly I am invited by non-Muslims only for iftar parties, and they're very sweet people, and they make sure that, you know, I get time for maghrib. That's interesting. And on that note, I have to tell you this, that, you know, as we talk about iftari, we talk about Ramzan, आपने कभी खुद ने कुछ बनाने की कोशिश की है, खाना बनाने की कोशिश, as such, like, you know, रमज़ान के ओकेजन पे कि चलो let me just go to the kitchen, और आपकी वाइफ को परेशान किया आपने? मैंने कॉलेज के दिनों में अपने लिए इतना खाना बनाया ना, अब मैं नहीं करना चाहता वो सब। What Sneha cooks for you? She basically is very good with non-veg. Yeah? And what is the favorite dish you like? There's a special mutton dish that she makes, which is her preparation. It's very nice. And my mother makes tomato chicken, which she has replicated very nicely. Wow. Yeah. That's interesting. And on that note, as you could see, That note.
हम लोग ने अभी खाया है अच्छा टेस्टी सा खाना और मुझे तो नींद आ रही है बिकॉज रात भी हो चुकी है, पर आई थिंक डेजर्ट को ट्राई करना चाहिए. बट बिफोर दैट आई रियली वॉन्ट टू नो योर रिव्यू ऑन द काइंड ऑफ फूड वॉट वी हैव हैड. I think I've entered the state of food coma, and before I pass out, we should definitely go for the dessert. Otherwise, मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा यहाँ से. किसी को बुलाना पड़ेगा आपके लिए. बुलाना पड़ेगा. But what you have to say, like, what did you like the most? एक तो नली निहारी थी, एक का ब्रेन नली निहारी थी, and then there was this halim also. Actually, I had never heard of Nalli Nihari with brain. तो हालांकि brain has overpowered Nalli Nihari in terms of taste there. But my favorite still remains Nalli Nihari only. But I got to taste something different with brain. But did I live up to your expectations in terms of taste? Absolutely. Since you know the entire town so well, I don't think you would have gone wrong. Okay. And on that note, let's go and let's have desserts, right? Let's go. Rock it. खाना खाने के बाद में फाइनली वी नीड सम इंटरेस्टिंग डेजर्ट और इसके लिए हम लोग आए हैं तवक्कल में और इकबाल की कुछ फेवरेट डिशेस यहाँ पे मंगाए हैं. वी कुड सी मालपुआ, कुनाफा, फिरनी एंड आल्सो सम मिठाई. व्हाट इज दिस कॉल्ड? It's called खाजा. Khaja. Khaja. This is called mawa khaja. Malai khaja. It's called malai khaja. So I think we should try this first. We have to try everything. Everything, yeah, one by one. No But you know what? no I matter think how much you eat, you will always have space for dessert. so when it comes to firni, ये जो चिपका होता है ना यहाँ पे अंदर इसके बर्तन के, वो बड़ा माइंड ब्लोइंग होता है. आप फिरनी घर पे बनाते हो? मैं तो नहीं बनाता, लेकिन मेरी मम्मी ने हम सबको बहुत फिरनी खिलाई है. तो रमज़ान मेंट बेशुमार फिरनी. मम्मी बहुत फिरनी बनाई थी. देगचियों की देगची है फिरनी भरती थी. Do you feel that firni is actually वो जो खीर को जमा कर जो बनाते हैं वही होता है कहीं ना कहीं? There's a lot of myth around it. I have no clue. Yeah? I can tell you how it tastes. But I like every kind of firni. मैं भेदभाव नहीं करता. As long as it's firni, I'll eat it. Interesting. And now we move on to if you have with malai, so this वो ज़्यादा मीठा नहीं लगता है. And if you have with रबड़ी थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है. हो जाता है. तो ये जो है मलाई है, इसका टेस्ट I'm liking the crunchy side of it. See this. Malpua's Turkish version. रियली. आप में से जितने भी लोग हैं जो 6 पैक लाना चाहते हैं या कोई किसी बीच हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, तो ऐसा खाना रोज़ खाइए, मज़ा आ जाएगा. मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं. तो मैं खा रहा हूँ. Here comes the part which is very heavy. So brace yourself for this one because this mawa looks very heavy. ना शुगर है इसमें, ना ग्लूटेन है इसमें, ना ड्राई फ्रूट है, ना दूध है, कुछ नहीं है. और ना फ्राइड है. बिल्कुल नहीं. ना फ्राइड है, ज़रा भी फ्राइड नहीं है एक्चुअली. बादाम तो ऐसे ही दिख नहीं रहा है. ये बादाम नहीं है, ये पता है वो डाइट वाला जो रहता है ना पेपर. मुझे तो वैसे मीठा पसंद नहीं. अच्छा पसंद नहीं है पर मैं खा रहा हूँ. मैं खा रहा हूँ. पर मैं खा रहा हूँ. इसका नाम ही खाजा होगा. Iqbal, after having this, Ramzan food basically, workout का सेशन आपका कितना बढ़ने वाला है? मैं एक्चुअली ये ऐसा खाना रमज़ान में
एक या 2 बार खाना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से सिंपल रखना चाहिए। 100%। ये आप अगर रोज़ खाएंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी। यहाँ पे जे हॉस्पिटल है नज़दीक में। On that note, it was lovely chatting with you, Iqbal, and having this entire session, eating this food, and I really loved everything, whatever I was eating with you and what we had. Definitely, this is our second session of food. Looking forward to see more of your interviews and your work. Thank you so much for your lovely time. Thank you so much for having me. God bless you.